दया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो हम लोग आज देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 7वें अध्याय, जिसका नाम है द्रोण पुत्र को शिक्षा। उसका हम देख रहे हैं श्लोका नंबर 12। तो मैं श्लोका पढ़ता हूँ, आप लोग रिपीट कीजिए। मैं श्लोका शेयर कर रहा हूँ। परीक्षितो अथ राजऋषेर् परीक्षितो अथ राजर्षि जन्म कर्म विलापनम् जन्म कर्म विलापनम् संस्थां च पाण्डुपुत्राणाम् संस्थां च पाण्डुपुत्राणाम् वक्ष्ये कृष्ण कथोदयम् अक्षे कृष्ण कथोदयम्। हरे कृष्ण। Translation and purport by Divine Grace Bhakti Vedanta Swami Prabhupada. Jai Shri Prabhupada. Jai Shri Prabhupada. Sutta Goswami thus addressed the rishis headed by Shaunaka. Now I shall begin the transcendental narration of Lord Shri Krishna and topics of the birth, activities and deliverance of the king Parikshit, the sage amongst kings, as well as the topics of renunciation of the worldly order by the sons of Pandu. Purport: Lord Krishna is so kind to the fallen souls that he personally incarnates himself amongst the different kinds of living entities and takes part with them in daily activities. Any historical fact, old or new, which has a connection with the activities of the Lord is to be understood as a transcendental narration of the Lord. Without Krishna, all the supplementary literatures like Puranas and Mahabharata are simply stories or historical facts. But with Krishna, they become transcendental. And when we hear of them, we at once become transcendentally related with the Lord. Srimad Bhagavatam is also a Quran. But a special significance of this Quran is that the activities of the Lord are central and not just supplementary historical facts. Srimad Bhagavatam is thus recommended by Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu as the spotless Quran. There is a class of less intelligent devotees of the Bhagavad Quran who desire to relish at once the activities of the Lord narrated the 10th canto without first understanding the primary cantos. They are under the false impression that the other cantos are not concerned with Krishna, and thus more foolishly than intelligently they take to the reading of the 10th canto. These readers are specifically told herein that the other cantos of Bhagavatam are as important as 10th canto. No one should try to go into the matters of 10th canto without having thoroughly understood the purport of the other 9 cantos. Krishna and his pure devotees, like Pandavas, are on the same plane. Krishna is not without devotees of all the rasas, and the pure devotees, like Pandavas, are not without Krishna. The devotees and the Lord are interlinked and they cannot be separated. Therefore, talks about them are all Krishna Katha, or the topics of the Lord. Hare Krishna. Padaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namne Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advait Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. हरे कृष्णा। तो आज हम लोग देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद, जिसका नाम है सृष्टि का 7वां अध्याय, सन ऑफ द्रोणापनिष्ठ का 12वां अध्याय। तो इसमें आज के श्लोक में क्या आता है, सुत गोस्वामी जी जब शौनक मुनि ने पूछा तब सुत गोस्वामी बोल रहे हैं कि नाउ आई शैल बिगिन द ट्रांसेंडेंटल नरेशन। मतलब अब मैं भगवान श्री कृष्ण का जो नरेशन है वो शुरू करता हूँ, उनका जन्म, उनकी गतिविधियाँ, के कार्यकलाप और महाराज परीक्षित का उद्धार कैसे हुआ, जो
सभी राजाओं में ऋषि के समान थे। और ये भी टॉपिक कि कैसे पांडु लोगों ने, जो जितने भी पांडव थे, 500 पांडु पुत्र, उन्होंने कैसे इस वर्ल्डली ऑर्डर, जो मतलब जो संसार को कैसे उन्होंने वैराग्य लिया उनसे, वो है। तो हम लोग अभी तक जो देखे तो क्या हो रहा था कि सुत गोस्वामी मतलब ये बोल सकते हैं कि अभी यहाँ से जो है मतलब नाउ आई शैल, मतलब अभी यहाँ से वो जो है टॉपिक चेंज कर रहे हैं। जब हम लोग कुछ भी बोलते हैं ना तो ना कि ये हो गया, अब मैं ये बोलना शुरू करता हूँ, वैसे ही सुत गोस्वामी जी जो है यहाँ से एक मतलब टर्न मार रहे हैं अभी, एंड स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक। और यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि अभी जो है यहाँ से भगवान का जो है बोल रहे हैं कि मैं कथा शुरू कर रहा हूँ, भगवान का और भगवान के भक्तों का। तो अभी तक जो था हमने देखा कि कैसे श्रीमद् भागवतम का अवतरण हुआ, कि नारद जी और व्यासदेव का संवाद देखा हम लोगों ने। और कैसे जो है मतलब श्रीमद् भागवतम लिखने का प्रेरणा नारद मुनि ने दिया, वो सब देखा हम लोगों ने उसमें। और फिर ये भी बोल सकते हैं, जैसे हमने देखा आत्माराम वाला श्लोका, तो उसमें तो उसमें सुखदेव गोस्वामी हैं, उनका एक तरह से इंट्रोडक्शन दिया उन्होंने। मतलब जैसे हम लोग जब किसी स्पीकर को बुलाते हैं तो थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन देते हैं ना, कि ये प्रभु ऐसे ऐसे हैं, इतने ग्रेट वैष्णवा हैं। तो जस्ट बिफोर दैट जब आत्माराम श्लोक बोला तो इट इज लाइक एन इंट्रोडक्शन की जो सुखदेव गोस्वामी जिन्होंने श्रीमद् भागवतम कहा, हाउ ग्रेट ही इज। तो फिर वो आत्माराम वाला जो है कि श्लोक उन्होंने दिया। और फिर हमने लास्ट श्लोका में देखा कि कैसे सुखदेव गोस्वामी जो ये कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी न सिर्फ वो ट्रांसेंडेंटली पावरफुल थे, लेकिन वो भगवान को बहुत प्रिय थे और भगवान के भक्त भी उनको बहुत प्रिय थे। और अब जो है वो बोल रहे हैं कि अब मैं यहाँ से जो है असली कृष्ण कथा जो है वो शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे फिर वो कहते हैं कि मैं भगवान के जन्म और कर्म के बारे में बताऊंगा, और पांडवों ने कैसे इस को वैराग्य लिया, वो सब टॉपिक। फिर परीक्षित महाराज के बारे में, तो परीक्षित महाराज का भी जो टॉपिक है, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ श्रीमद् भागवतम। तो यहाँ पे आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि एक्चुअली लॉर्ड कृष्णा इज सो काइंड दैट टू द फॉलन सोल्स दैट ही पर्सनली इनकार्नेट हिमसेल्फ, कि भगवान कृष्ण जो हैं वो जितने भी बद्ध जीव हैं वो इनके प्रति इतने कृपालु हैं कि वो स्वयं अवतरण करते हैं अपना, वो धरती पर आते हैं। और हम लोग देखते हैं अलग अलग जो है डिफरेंट है ना लिविंग एंटिटीज, अलग अलग प्रकार के जो हैं उसमें वो अवतार लेते हैं और उनके साथ सहभागी होते हैं। तो हमने देखा फिर जैसे वो राक्षसों के बीच में उन्होंने अवतार लिया, दैट इज नरसिंह देव। फिर बाद में मनुष्य के बीच में अवतार लिया, और देवताओं के बीच में अवतार लिया। तो मतलब जैसे अलग अलग जगह पे, जैसे वामन देव है उन्होंने देवताओं के बीच, तो हर जगह पे वो पास टाइम इसलिए करते हैं क्योंकि जितने भी अपने वैष्णव आचार्य वो ये कहते हैं कि भगवान को कोई जरूरत नहीं है अवतार लेने की, लेकिन वो अवतार इसलिए लेते हैं ताकि उनके जो भक्त हैं वो उनको रिलीज करे, और उनके प्रति जो आकर्षण है वो भगवान के प्रति वो उनका बढ़े, और उनका और जो जो बोलते हैं ना एक क्रेविंग है मतलब गोलोक जाने का, वो और तीव्र हो। और इसीलिए जो बोलते हैं कि जो जैसे इम्पर्सनल और पर्सनल बोलते हैं ना, तो अगर किसी को पता ही नहीं है भगवान कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं, तो उसके प्रति प्रेम कैसे होगा। लेकिन जब भगवान खुद आते हैं वामन रूप में, या वराह रूप में, या नरसिंह रूप में, तो कितना वो आकर्षित होता है, ओ भगवान ने ऐसा किया, भक्त प्रहलाद महाराज को ऐसे इतना बार बचाया, ये किया, उनके लिए उन्होंने अवतार लिया। तो ये सब जब सुनते हैं भक्त, तो दे रियलिश मोर कि भगवान कितने कृपालु हैं, उनका गुण क्या है, उनका लीला क्या है, वो सब समझते हैं, और दे बिकम मोर एंड मोर अट्रैक्टेड। और उससे जो है उनका जो
कि भगवत धाम जाने का जो एक उत्सुकता है वो काफ़ी उनका बढ़ जाता है। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं इसमें और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कहते हैं कि कोई भी जो है जैसे भागवत पुराण है, सॉरी भागवत पुराण नहीं, जैसे दूसरे भी जैसे महाभारत है या जो दूसरे पुराण है, वो अगर उसमें अगर कृष्ण नहीं है तो वो यूजलेस है। वो इट इज जस्ट मतलब सिंपल स्टोरी, खाली स्टोरी है वो। लेकिन जब कृष्ण उसमें आते हैं तो वो ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर बन जाते हैं, और जब हम सुनते हैं तो हम भी ट्रांसेंडेंटली उससे कनेक्ट हो जाते हैं भगवान से। और वही हम लोग जो आयरन रॉड वाला एग्जांपल देते हैं कि आयरन रॉड कैसे जो है आग में जब रखते हैं तो वो भी फायर हो जाता है, तो वैसे ही हम लोग भी जब ऐसे ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर के संपर्क में आते हैं, उसको सुनते हैं हम लोग, तो हम लोग भी जो है ट्रांसेंडेंटली जो उनके रिलेशन में आते हैं। और जो श्रीमद् भागवतम वो ऐसा एक बेस्ट पुराण है। हम लोगों ने पिछला कुछ श्लोकों में इसको काफ़ी चर्चा की है, कैसे इसका खाली श्रवण मात्र से अपना कितना उद्धार हो सकता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं चैतन्य महाप्रभु कोट करते हुए कि ये एक स्पॉटलेस पुराण है। चैतन्य महाप्रभु इसको अमल पुराण कहते हैं। मतलब जो एकदम मतलब थोड़ा सा भी मतलब जो दूसरे जो पुराण है उसमें थोड़ा सा उसमें भौतिकता बोल सकते हैं उसमें, क्योंकि उसमें आपको कहीं पे कहा ये करने से ये हो जाएगा, ये करने से ये हो जाएगा, लेकिन भागवत पुराण में सिर्फ और सिर्फ भगवान की कथा है। और भगवान जैसे बोलते हैं भगवत गीता जो है ये भगवान के द्वारा कहा गया वाक्य है, और श्रीमद् भागवतम जो है वो भगवान के बारे में वाक्य है। तो दोनों में जो है दोनों में यही एक सिमिलरिटी की है कि वो भगवान कृष्ण के बारे में है। और भागवतम में जो है न सिर्फ भगवान भगवान के भक्तों की भी कथा आती है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बहुत अच्छे से हाईलाइट कर रहे हैं एक पॉइंट कि कुछ जो अल्प बुद्धि वाले हैं वो सोचते हैं यार इसमें तो परीक्षित महाराज की कथा है, छोड़ो इसको क्या पढ़ना। अरे इसमें तो ये प्रहलाद की कथा है, इसको क्या सुनना। अरे यहाँ पे तो ध्रुव की कथा है, इसको क्या सुनना। तो वो सब इसको जो है इम्पोर्टेंस नहीं देते और सीधा बोलते हैं जो कृष्ण कथा जिसमें वो हम लोग पढ़ेंगे, और सीधा वो जंप मारते हैं 10वें स्कंद पे। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं दैट इज टोटली रॉन्ग, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग एनालॉजिकली अगर हम लोग देखें तो जैसे कोई बच्चा है उसको जब एजुकेशन करना है तो उसको सीधा उसको मतलब ग्रेजुएशन के जगह पे नहीं बिठाते उसको कि भाई तुम बैठ के ग्रेजुएशन करो। उसको पहले एबीसीडी नर्सरी में जाना पड़ता है, एबीसीडी सीखता है, फिर प्राइमरी एजुकेशन खत्म करता है, सेकेंडरी एजुकेशन खत्म करता है, फिर वो ग्रेजुएशन के लायक बनता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो भगवान के जो भक्तों की कथा है कि कैसे भगवान के भक्त को भगवान के प्रति प्रेम कितना है, कैसे हुआ, ये सब जब हम लोग सुनते हैं तो हम लोग को भी जो है वो एक लालसा रहती है कि हम लोग में भी ये ऐसे गुण होने चाहिए। और इसके लिए बोलते हैं कि भगवान के भक्तों की कथा हमको सुननी चाहिए। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे इसी बात पे जोर दे रहे हैं कि भगवान के भक्तों की कथा भी जो है वो भगवान से रिलेटेड है, इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण कथा। तो जो भगवान के भक्तों की कथा है, जैसे फिर प्रहलाद महाराज की हो या ध्रुव महाराज की हो या महाराज प्रियव्रत की हो या महाराज नाभि की हो, तो सारा ये जो है ये इट इज डाइवर्टिंग अस। हम लोगों को भगवान जो है हम लोग कहीं और फंसे हुए हैं उससे निकाल के डाइवर्ट करके हमको भगवान कृष्ण के चरणों में लेके जाता है। तो इसके लिए कभी भी जो है ये जो 9 स्कंद हैं इसको स्किप नहीं करना चाहिए। दिस आर द स्टेपिंग स्टोन जो बोलते हैं ना कि इसके बिना हम लोग 10वां स्कंद बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे हम लोग। तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग ये जो है सारे स्कंद को पढ़े और स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ करते 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 हम लोग 10th कैंटो पे पहुँचे, और तब वहाँ पे भगवान क्या लीला कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, ये रास लीला भी है। तो वी विल अंडरस्टैंड इन ए प्रॉपर वैष्णव मूड।
नहीं तो फिर वो जैसे मूवीज में लड़का लड़की मिल रहे हैं, प्रेम हो रहा है, गाना गा रहे हैं, साथ में घूम रहे हैं, तो ये एक जो मटेरियल पर्सपेक्टिव जो हमारे मतलब जो चश्मा चढ़ा हुआ है, उसी नजरिए से हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये जो भौतिकता का जो चश्मा हमारे आंखों पे पड़ा है, वो जब तक नहीं उतरता तब तक हम लोग को जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो दिखाई नहीं देगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सारे के 9 स्कंद पढ़ के हम लोग अपने आप को प्यूरिफाई करें, हम लोग अपने आप को शुद्ध करें, और शुद्ध करने के बाद में भगवान जो भी पास टाइम कर रहे हैं 10वें स्कंद में, चाहे वो फिर पूतना वध हो या रासलीला हो, हम लोग उसको एक सही दृष्टिकोण से हम लोग इसको देख पाएंगे। नहीं तो हम लोग फिर जो है उसको अपना जो मटेरियल माइंड का जो मटेरियल कंसेप्शंस है उसी के हिसाब से हम लोग देखते रहेंगे। तो ऐसा जो है वो गलत है, और इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं ना कि हमेशा भगवान का मैसेज एज इट इज होना चाहिए, शुड नॉट बी इंटरप्रेटेड। तो बाकी जो दूसरे जो ग्रंथ जो दूसरे जो लिखते हैं, तो उसमें वैष्णव इंटरप्रिटेशन नहीं होता, उसमें उनका अपना मटेरियल कंसेप्शन होता है। अरे भगवान ने ऐसा किया, ये रासलीला किया, तो उसमें मिर्च मसाला डाल के अपना जो है अपना पैसा कमाने के हिसाब से वो लोग गलत गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, एंड पीपल आर अट्रैक्टेड टू दैट। तो वो नहीं होना चाहिए। हम लोगों को जो एग्जैक्ट मतलब जो वैष्णव अंडरस्टैंडिंग क्या है वो समझने के लिए हम लोगों को एक प्रॉपर आचार्य जैसे प्रभुपाद जी हैं, उन्हीं से हम लोगों को ये जो भागवत पुराण है इसको समझना चाहिए हम लोगों को। और इसके लिए हम लोग ये भी देखा कि जैसे खाली अगर श्लोका भी अगर हम लोग पढ़े तो भी हम लोग उसको उस श्लोक का जो है मतलब उसका क्या गूढ़ रहस्य है, उस श्लोक में प्रभुपाद जी क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब भगवान कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं वो समझ। और तब यहाँ पे प्रभुपाद जी का बीच में रोल आता है कि वो उसको डिकोड करके बताते हैं कि यहाँ पे इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, और ये ऐसे होना चाहिए। तो दिस इज ऑल वेरी नाइस। बोलते हैं ना प्रभुपाद जी ने हमारे लिए पूरा डिकोड करके हमको सामने रख दिया है। अब हमारे ऊपर है कि हम लोग इसको कितने अच्छी तरह से इसको ग्रहण करते हैं। तो बोलते हैं ना एक तो होता है देने वाला पात्र होता है और एक लेने वाला पात्र होता है। तो दोनों का जो है मतलब प्रभुपाद जी नो डाउट प्रभुपाद इज द बेस्ट आचार्य, लेकिन हम लोगों को भी जो है ये एक अच्छा पात्र बन के हम लोग जितना अच्छा रिसीव कर सके उसको हमें रिसीव करना चाहिए। तो यही है कि वी कैन से इन ब्रीफ कि अब जो है यहाँ से अभी यहाँ से जो असली कृष्ण कथा है वो अभी यहाँ पे शुरू होने वाली है। भगवान के जन्म कर्म उनकी लीलाएं और महाराज परीक्षित का उद्धार कैसे हुआ, जैसे हम लोग देख रहे हैं 7वें अध्याय का नाम है सन ऑफ द्रोण पनिष्ठ। तो इसमें पक्का जो है महाराज परीक्षित का कथा यहाँ पे आएगा कि कैसे द्रोण अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, कैसे भगवान कृष्ण ने उनको की रक्षा की, वो सब आएगा। तो यू कैन से कि जो है असली जो है मतलब यू कैन जो है असली जो चीज़ है मतलब जो वो यहाँ से शुरू हो रही है। और टिल नाउ व्हाट वी सॉ वाज जस्ट अ प्रीफेस, जैसा हम लोग जैसे प्रभुपाद जी लिखते हैं ना प्रीफेस कुछ कि उसका बोलते हैं भूमिका बनाते हैं वैसे। तो अभी तक जो हम लोग देख रहे थे इट वाज अ वेरी नाइस preface, and now the real कृष्ण कथा will start। तो हरे कृष्णा मैं यहाँ पे रुकता हूँ, किसी का कोई कमेंट्स है तो हम लोग ले सकते हैं। हरे कृष्णा।
चलो हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, कमेंट्स नहीं है, तो हम लोग नथिंग आरती कर लेते हैं। प्रभु जी हरे कृष्णा दलत प्रभु जी या प्रभु जी थैंक यू सो मच प्रभु। बट प्रभु जी एक मुझे एक क्वेश्चन था प्रभु कि बहुत लोग ये बोलते हैं कि जितने भी कथा है मतलब जो भी आती है शास्त्र में इट्स कॉल्ड माइथोलॉजी बोलते हैं प्रभु। तो हाउ वी कैन मतलब हमें किस तरह उन्हें ये बोलना है प्रभु कि ये माइथोलॉजी नहीं है। एंड एग्जैक्ट वर्ड प्रभु व्हाट अबाउट मतलब माइथोलॉजी का मतलब प्रभु ये वो भी समझाना था। हरे कृष्णा। जैसा ये टॉपिक कल भी प्रभु जी ने उठाया था। माइथोलॉजी इसको क्यों जो है, ये एक्चुअली यूरोपियन एक टर्मिनोलॉजी है, तो यूरोपियन ने दिया है। एक्चुअली उनका पूरा बेस ही जो था वो ये करना था कि जो अपना जैसे ब्रिटिश लोग जो थे उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया हमारे वैदिक कल्चर को। तो उन्होंने पहले बहुत साल राज किया, लेकिन फिर भी जो है इंडिया को तोड़ नहीं पा रहे थे। तब एक क्या नाम था उसका, एक ब्रिटिशर था, वो सारे इंडिया में घूमा। वो एक्चुअली उसको अपॉइंट किया गया कि तुम ये ढूंढो इसको कि कैसे हम लोग इसको तोड़ सकें। तो पूरे इंडिया में घूमा और तब उसने जो अपना वर्डिक्ट दिया, दैट इज रियली सरप्राइजिंग। वो बोलता है कि इंडिया जो है इसका वैदिक कल्चर इतना डीप रूटेड है और इसीलिए ये लोग इतने वेल कल्चर्ड हैं और इतने कनेक्टेड हैं। तो जब तक इसको नहीं तोड़ते हम लोग इंडिया पे हम लोग पूरा कंट्रोल नहीं ले पाएंगे, हम लोग इंडिया को रूल नहीं कर पाएंगे। और उसने यही कहा और इसकी वजह से इन्होंने क्या किया कि जो अपने वैदिक कल्चर कैसा गलत है ये दिमाग में डालना शुरू किया और इसके लिए उन्होंने ये टर्म दिया माइथोलॉजी। तो माइथोलॉजी मतलब, माइथोलॉजी जो वर्ड है ये आता है वर्ड मिथ से, और मिथ मतलब झूठा। तो जो भागवत पुराण है या रामायण है ये माइथोलॉजी नहीं है। ये टर्म जो है ये बिल्कुल गलत है। ये जैसे कोई भी अगर बोलता है माइथोलॉजी तो उसको बोलना सॉरी, दिस इज नॉट माइथोलॉजी। माइथोलॉजी मतलब झूठा। जैसे कोई फैंटेसी मूवी होता है, कोई स्टोरी होता है, दैट इज माइथोलॉजी, क्योंकि पूरा असली नहीं है वो। दैट इज ऑल मतलब ना एक इमेजिनेशन। लेकिन रामायण कहो, महाभारत कहो या भागवत पुराण कहो, दिस इज ऑल हिस्ट्री। ये हो चुका है और उसको रीराइट किया गया है, मतलब इट इज हिस्ट्री। इसको इतिहास कहा जाता है, इसको इट इज नॉट माइथोलॉजी। तो कोई भी अगर इसको वर्ड यूज करता है कि महाभारत इज अ वेरी नाइस माइथोलॉजी, तो तुरंत उसको रोक देना चाहिए। सॉरी, दिस इज नॉट माइथोलॉजी, दिस इज हिस्ट्री, क्योंकि ये हो चुका है। एंड भगवान रामचंद्र का भी जो है ये लोग बोलते हैं माइथोलॉजी है, इतने साल पहले ऐसा हो सकता है क्या? तो नासा ने खुद इसका प्रूफ दिया कि इंडिया से लेके श्रीलंका के बीच में आज भी जो है उसका जो नासा का फोटो है उन्हें पब्लिश किया हुआ है कि फेडेड पतला लाइन दिखता है। और आज भी कन्याकुमारी पे हम लोग अगर खड़े रहे तो वी कैन सी दैट स्टोन्स। तो इतने लाखों साल हो गए लेकिन फिर भी अभी तक दैट सेतु का जो है पत्थर वो आज भी दिखाई देते हैं। नासा से मतलब खाली मतलब कोई ये बोले कि कन्याकुमारी पे किसी ने रख दिया होगा, नहीं। वो पूरा समुंदर में जो है यहाँ से लेके श्रीलंका तक पूरा वो लाइन दिखता है। तो दैट मीन्स भगवान रामचंद्र आए थे, उन्होंने सेतु बनाया था और वो उस पार गए थे सेतु से चल के। तो ये जो माइथोलॉजी है ये ब्रिटिश लोगों का इन्वेंट किया हुआ है और इनको क्रिश्चियनिटी जो बेस करना था उनको, ये हटाएंगे तो ही जो है लोग जो है क्रिश्चियनिटी को। और इसीलिए आज हम लोग देख रहे हैं कि इतना जो कन्वर्शंस हो रहे हैं, जो लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं या इस्लाम में कन्वर्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपना धर्म के बारे में पता ही नहीं। क्योंकि जो यूरोपियंस ने जो इतना नुकसान पहुंचाया हमारे वैदिक कल्चर को कि पूरा जो है पूरा फेड आउट हो गया, किसी को कुछ पता ही नहीं है। और वो जो आई थिंक नालंदा जो यूनिवर्सिटी में लाखों लाखों बुक रखे हुए थे जिसमें पूरा नॉलेज था
वो सारा वो जो बख्तियार खिलजी नाम का जो आदमी था उसने उसको पूरा जला दिया। आई थिंक ऐसा कुछ कहा जाता है कि महीना भर वो जल रहा था पूरा। तो इतना सारा नॉलेज था। तो किसी ने मतलब उसको एक मॉडर्न आज के समझने के लिए उन्हें बताया कि सडनली आप समझ लो कि गूगल बंद हो गया, सारा सर्वर्स क्रैश हो गया और सारा डेटा जो है पूरा, यस प्रभु यही वाला है मैककॉल के। यस सत्याश प्रभु, थैंक यू वेरी मच। मैककॉल की। तो मैं इसको पढ़ता हूँ जस्ट। थैंक यू सत्यराज प्रभु। मेरे पास था लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था वो निकालने के लिए। तो वो कहता है माई इंडिया इन 1835। तो उसका क्या कहना है, आई हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडिया एंड आई हैव नॉट सीन वन पर्सन हु इज ए बेगर। मतलब 1835 की बात है, ज़्यादा लंबा भी नहीं। वी आर इन 2000। तो 200-250 साल पहले एक भी बेगर नहीं था। और आज इंडिया में देखो, ये लोग हम लोगों को बोलते हैं भिखारियों का देश बोलते हैं। तो कितना इन्होंने हमारे हानि पहुंचा है। और बोलते हैं कि आई हैव नॉट सीन ए पर्सन हु इज अ बेगर, हु इज अ thief, such wealth I have seen in this country, such high moral values, people of such caliber that I do not think we would ever conquer this country unless we break the very backbone of this nation, which is her spiritual and cultural heritage. And therefore I propose that we replace her old and ancient education system, her culture. For if the Indian thinks that all that is foreign and English is good and greater than their own, they will lose their self-esteem, their native culture, and they will become what we want them, a truly dominated nation. तो ये उसने 2 फरवरी 1835 का उसका ये उसने दिया हुआ उसका वर्डिक्ट है उसका, ये कि यही एक तरीका है। और इसके लिए मतलब वी कैन अंडरस्टैंड कि वैदिक कल्चर कितना सुपर था अपना। मतलब आज जो सब छोड़ के ये लोग सब मॉडर्न एजुकेशन के पीछे भाग रहे हैं लोग। पहले जो 200 साल पहले की बात है, सब जो है इंडिया में आते थे पढ़ाई करने के लिए। और जैसे हमने वो दिन भी देखा कि मायापुर, नवद्वीप और मिथिला और तक्षशिला, ये सब जो था ये पूरा वर्ल्ड का यूनिवर्सिटीज हुआ करता था। लोग बाहर से पढ़ने के लिए आए और ये जो उन्हें नुकसान पहुंचा आज हम लोग देख रहे हैं कि कितना पूरा उल्टा हो गया। तो यहाँ से बाहर जा रहे हैं। हम लोग बोलते हैं कि हमको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है। तो जैसे अब जो इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज इसको मानते हैं, ये इंडिया में हुआ करता था सर। और देखो वेरी नाइस स्टेटमेंट इज सेइंग कि एक भी आदमी भिखारी नहीं है और एक ये आदमी चोर नहीं है, क्योंकि उसके पास सब कुछ है। तो क्यों वो चोरी करेगा और क्यों भीख मांगेगा। तो दैट वाज हाउ रिच इंडियन कल्चर वाज, वैदिक कल्चर वाज। ये हो गया माइथोलॉजी से। और ये आई थिंक दैट आंसर्स योर क्वेश्चन सरोदे प्रभु। या प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। प्रभु जी इन्होंने ही जलाया ऐसा बोल रहे प्रभु आप, ये लॉर्ड मैक्यूले ने जो हमारे नहीं इसने नहीं जलाया। ये एक मुगल था, एक बख्तियार खिलजी। मैं उसका भी अभी रिसेंटली मुझे एक पोस्ट आया था, वो भी मैं शेयर करता हूँ उसमें कि कैसे जो पूरा जो यूनिवर्सिटी था उसने जला दिया और उसके नाम से ये बख्तियार स्टेशन जो है वो बनाया हुआ है। तो आई विल शेयर दैट में भी वो भी है एक कि जिसने पूरे इंडिया का सत्यानाश कर दिया। ऐसे लोगों के नाम पे बाबर रोड, हुमायूं रोड और पता नहीं क्या क्या। इसीलिए ये जो इतना जो है मतलब इतना डिग्रेडेड हो गए हैं लोग कि जो इंडिया को नुकसान पहुंचा रहे हैं उसी के पीछे ये लोग भाग रहे हैं। हरे कृष्ण। तो ये जो था मैकॉले लॉर्ड मैकॉले, तो ये उसका एक जो है ना रिसर्च किया और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में उनका जो था रखा, ये एक ही तरीका है। और फिर उन्होंने धीरे धीरे अपना जो वैदिक कल्चर का सत्यानाश करना शुरू कर दिया। इवन ये बोलते हैं इंडिया में चाय भी नहीं था पहला, ये चाय भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। और
फिर उनको धीरे धीरे आदत लगाया, बोला अरे आप लोग गाय का दूध क्यों लेते हो, अब भैंस का लो। तो इंडिया में इट वाज मतलब हम लोग देखते हैं नंद बाबा के पास 9 लाख गाय हुआ करती थी। एक व्यक्ति के घर में 9 लाख गाय, बाप रे बाप। आज कोई एक गाय रखना बोले तो वो सोचता है मैं कहाँ पे रखूंगा इसको मैं, लेकिन ही यूज्ड टू हैव 9 लाख काउस, so दैट वाज आवर वेल्थ। और इससे हम लोग जो हैं इतना फ्लरिश होते थे हम लोग, बट सब आज जो है पूरा हेवायर हो गया पूरा। हरे कृष्णा। यस प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सरोदे प्रभु। एंड थैंक यू सत्यराज प्रभु, एकदम एप्ट फॉर्म सीधा वो शेयर किया, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, जय श्री प्रभुपाद। चलो, और किसी का कोई कमेंट क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग का नरसिंह आरती करते हैं। यस सत्यराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। बहुत अच्छे से आपने वो एक्सप्लेन किया, वो बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। सबसे मेन पॉइंट्स मैंने लिख भी दिए प्रभु जी। मुझे एक पॉइंट वो जो बोलना था प्रभु जी, हम लोग देखते कि आपने बोला था कि जैसे हम लोग भगवान के बारे में सुनते हैं तो तो हम लोग को वही कथा अगर हम लोग बार बार सुनेंगे तो और इंटरेस्ट बढ़ता है। और जैसे आपने बोला कि भगवत गीता और भागवतम के बारे में आपने जैसे ही बताया, तो एक डिवोटी बात कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि हम लोग अगर वो दामोदर आरती के बारे में जब भी हम लोग लेक्चर सुन रहे थे, तभी वो बोल रहे थे कि हम लोग भगवान का लीला जितनी बार सुनेंगे, अगर दामोदर आरती का कथा है तो हम लोग को पता है कि दामोदर आरती में क्या होता है। तो बार बार बोलते कि कोई बोलेगा कि मैं अभी 10 बार हो गया और लेक्चर चालू है, अभी मैं बाहर जाके फोन पे बात करता हूँ। तो वैसा नहीं हो, फिर आपका भगवान के प्रति आकर्षण नहीं है। तो वो क्या बोल रहे थे तभी कि आप जितना बार सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण की कथा, जो भी, अगर दामोदर कथा आपने 10 बार कोई सुनी है तो आपको 11 बार सुननी चाहिए, 11 बार सुननी है तो 12 बार, मतलब यू हैव टू इंक्रीज कंटिन्यूस। तो उससे है ना आपका प्यार और बढ़ेगा। और आपके जन्मान जन्मांतर में इतने सारे पाप इकट्ठे किए हैं, वो आपको पता भी नहीं चलेगा, वो निकलते जा रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि भगवान का जो कथा है हम लोगों ने सुना, फिर भी हम लोग को सुनना है। देन वी हैव मोर एंड मोर अट्रैक्शन टुवर्ड्स लॉर्ड एंड हिज डिवोटी। ये पॉइंट ऐड करना था। हरे कृष्णा। धन्यवाद। यस सर, थैंक यू प्रभु, वेरी नाइस पॉइंट। कि जो है और भगवान का कथा स्पिरिचुअल होने के कारण ये हम लोग 20 बार भी अगर हम लोग सुने हैं, हम लोग दामोदर कथा, हम लोग दामोदर महीने में ही हम लोग एक घर में कम से कम 3-4 आरती करते हैं और वही कथा सुनाते हैं, दिन में 4 बार कथा सुनाते हैं और ऐसा पूरा महीना करते हैं। कभी कभी 4-5 दिन एक्सटेंड भी हो जाता है, बट स्टिल वी रिलिश द कथा। तो ये स्पिरिचुअल होने के कारण जो है ये इसमें ये पावर है, ये पोटेंसी है। ये दूसरा कोई कथा जो है हम लोग भौतिक जगत का, वो हम लोग बार बार ऐसा रिपीट नहीं कर सकते। एक बार 2 बार ठीक है बस, इसके ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन स्पिरिचुअल कथा जो है, भगवान का कथा है, भगवान के भक्तों का कथा है, हम लोग अनंत काल तक हम लोग इसको ले सकते हैं। हरे कृष्ण। ये तो हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने जैसे भगवान के बारे में बहुत सारे रूप के बारे में, भगवान ने अवतार लिया था, वामन रूप वगैरह। तो भगवान का प्रभु जी भगवत गीता में ऐसा गया है कि जो विराट रूप है भगवान का, वो काल के अधीन है। वो व्यक्त भी होता है, अव्यक्त भी होता है। लेकिन वो काल के अधीन कैसा? भगवान तो काल के ऊपर है। मीन्स उन्होंने ये सब बताया, हम लोग को बताया कि भगवान निर्गुण है। लेकिन भगवान का जो विराट रूप है वो काल के अधीन कैसा है? वो मेरा थोड़ा सा एक सवाल था प्रभु जी। भगवान का विराट रूप जो है, एक्चुअली मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन आई थिंक ये पिछले बार हम लोग जब इस पर चर्चा कर रहे थे तो समवेयर इट केम कि दिस इज आल्सो काइंड ऑफ एक मटेरियल फॉर्म है इस मटेरियल वर्ल्ड के लिए। तो शायद इसीलिए वो काल के अधीन मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब उनका जन्म होता है मृत्यु होता है, नहीं वैसे नहीं, बट इट इज फॉर ए पर्टिकुलर टाइम। वो आता है और व्यक्त होता है, फिर अव्यक्त हो जाता है वो। तो इसके लिए मतलब काल के अधीन मतलब हम लोग को ये नहीं समझना चाहिए कि जैसे हम लोग हैं वैसे मृत्यु हो रही है या कुछ ऐसा, वैसे नॉट इन दैट सेंस। लेकिन इट्स काइंड मतलब एक बहुत ही
विशाल रूप है, विराट रूप है, बट इट इज ऑल्सो प्रभुपाद जी इसको कहीं पे लिख, मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं उसको सर्च करके बोलता हूँ। इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ ए मटीरियल फॉर्म वो, लेकिन उनका जो असली रूप है वो जो है श्याम सुंदर रूप, वो ही जो है सबसे उत्तम है। और एक मिनट, हाँ, कुंजीश्वरी ने कुछ निकाला है, एक मिनट। ये हाँ, ये एक मिनट, अभी हमने पढ़ा था श्रीमद् भागवतम के तीसरे अध्याय में पढ़ा था हम लोगों ने, श्लोका नंबर 3 में। उसमें तात्पर्य में श्री प्रभुपाद कहते हैं, भगवान के विराट रूप का यह विश्व रूप की कल्पना विशेष रूप से नव दीक्षितों के लिए है, जो भगवान के दिव्य रूप के विषय में सोच सकने में अक्षम होते हैं। तो यहाँ पे प्रभु जी क्या करें, ये जो विराट रूप भी जो है या विश्व रूप है, दिस इज फॉर नियोफाइट एंड नॉट फॉर एडवांस्ड और मैच्योर डिवोटीज। ये सब जो मतलब नियोफाइट है, जो मतलब भगवान के प्रति इतना श्रद्धा नहीं है, आकर्षण नहीं है, तो वो जब ऐसा बड़ा रूप दिखाते हैं तो एकदम ओ बाप रे बाप, ये भगवान है, बाप रे बाप, तुरंत जो नमस्कार करना शुरू कर देता है। दैट इज नियोफाइट। लेकिन जो जैसे शुद्ध भक्त है, जैसे अर्जुन है, उसने भी देखा, लेकिन बोला भगवान प्लीज ये बंद करो, आप अपने असली रूप में आ जाओ, मेरे को ये रूप नहीं देखना है। तो प्योर डिवोटी ऑलवेज वांट्स टू सी हिज श्याम सुंदर फॉर्म, इट डजंट वांट अदर फॉर्म। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू कुंजेश्वरी माता जी। You can refer the first canto, third chapter, श्लोका नंबर 3। उसमें स्टार्ट में फर्स्ट लाइन में यही है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि दिस इज फॉर नियोफाइट, और उनके लिए रूप का अर्थ इस भौतिक जगत से संबंध कोई वस्तु है। अतएव प्रारंभ में भगवान की शक्ति के विस्तार पर ध्यान एकाग्र करने के लिए ब्रह्म के विरोधी कल्पना आवश्यक होती है। तो यू कैन रिफर दिस कृष्णा 1-3 प्रभु जी। 133। ओके ओके। मैं सोच रहा था मेरे ही मेमोरी बहुत अच्छा है। हरे कृष्णा। ओके चलो, नरसिंह आरती कर लेते हैं हम लोग। नरसिंह